Everyone, welcome back to Tech Orbit channel. So in today's session we'll learn one of most important Excel topics for a data analyst, which is a lookup function. Okay, so in today we are going to learn about lookup function. Okay. So if I told so whenever your data is stored in a multiple tables, okay, instead of manually copying information, Excel can automatically fetch the required data. That is the lookup. Means suppose तुम्हारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, ओके, सो मल्टीपल टेबल्स में अलग अलग जगह पर डाटा रखा हुआ है. सपोज एक टेबल है तुम्हारे पास, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है. दूसरी टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है. अब तुमको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी चाहिए फर्स्ट टेबल में, ओके, तुम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फेच करना चाहते हो. सो व्हाट यू विल डू, यू कैन यूज हियर लुकअप. क्योंकि अगर तुम मैनुअली इसको करने का ट्राई करोगे, मैनुअली कॉपी करोगे इन्फॉर्मेशन के, तुम कैसे समझ पाओगे कि यही एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी से ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है. ओके, सो यहाँ पर तुम लुकअप यूज कर सकते हो. सो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय आईडी सैलरी वाले टेबल पे है, जो एम्प्लॉय नेम वाले टेबल पे है, वो उसी टाइप के एम्प्लॉय आईडी को सर्च करके वो डिपार्टमेंट उसी प्लेस पे वो पुट कर देगा, राइट कर देगा. ओके, सो ये मतलब होता है लुकअप का. तो यहाँ पर बहुत बहुत सारे टाइप्स के लुकअप्स होते हैं. सो पहला लुकअप होता है वी लुकअप. मैं एक एक करके सारे लुकअप बताऊंगी. ओके, सो पहला लुकअप होता है, देन एस लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप एंड द हॉरिजॉन्टल लुकअप. देन एक्स लुकअप, ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, इसके बारे में भी बताएंगे. फोर्थ होता है इंडेक्स मैच. ओके, इसके बारे में भी बताया जाएगा. फिफ्थ है ये बेसिकली लुकअप नहीं है बट फिर भी हम उसको एज लेते हैं, बट इसके बारे में बताएंगे, मल्टीपल कॉलम लुकअप. जब हमें मल्टीपल कॉलम, अगर हमको मल्टीपल कॉलम का यूज करके हमको वैल्यू सर्च करनी हो तब. एंड देन कंडीशन बेस्ड इफ एरर एंड इफ एन ए. ये कोई लुकअप नहीं होता है, ये बेसिकली टॉपिक है जो इसके कंटिन्यू में रहेगा. तो हम टॉपिक का नेम दे रहे हैं. सो दिस टॉपिक ऑल्सो आई विल टीच यू. सो देन that's it, that's all the topic. Now I will start from lookup definition. Okay, so I will take one example. Suppose one Excel sheet contains employee IDs and another sheet contains employee salary. Okay, so now imagine there are 50,000 employee. Will you search each salary manually? Of course not. Okay, so there is a where functions help us. Lookup functions help us. Okay, lookup functions search for one value and return the related information automatically. Okay, so what is, why we need to use lookup, why we can't do manually? So there is a lots of uh, point. First thing is that it's quickly retrieve data from large data set. Okay, it save the time, it's reduce human error also. Okay, with lookup we can use conditions also, many more things, and it handles large data set also. So suppose you are doing it manually, so if you are searching 10 values, so it's take 10 minutes, but if you use lookup functions, so it's in 1 second it can do that work, that same task. Okay, so that's why we use lookup. So first lookup I am going to teach you, which is the VLOOKUP. Which is the VLOOKUP. V stands for a vertical. V stands for a vertical. Okay, so vertical means like that. So suppose this is the employee ID and this is the employee name. This is the first table and there is a second table. This is the employee ID. Okay, and this is the department name. So it will search like that. Okay, when you use it will search like that. If you want department table here, department name here also, it will search like that. It will match one. Okay, so it matches to this department should be here, this department should be here, this department should be here. So like that it will work. So vertical lookup. Okay, so next I will tell you something, the syntax. Okay, syntax means how the VLOOKUP formula will look like. So when you write in Excel, V is equal to VLOOKUP, okay, in one cell, so it's automatically show you lookup value. Okay, it will ask lookup value, so you have to click on the lookup value. Then it will ask for a table array, so you can put comma and then select the table array. I will teach you what is all the things. Then column index number, it will ask for a column index number, and then one thing it will ask false or true. You have to choose one thing in between those. Okay, तो ये होते हैं, ये हमारा सिंटैक्स होता है VLOOKUP का. इसका यूज करके हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना. तो अब हम तुमको बताते हैं ये होते क्या है बेसिकली. सो लुकअप वैल्यू क्या होती है बेसिकली, दिस वैल्यू टू सर्च फॉर द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल और रेंज. दिस, ओके, लुकअप वैल्यू टू सर्च फॉर द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल or range. Okay, this is the value you want to search for the first column of your table or range. It could be the number text reference to cell containing the value. Okay, जिस वैल्यू से तुम सर्च करना चाहते हो, जो वैल्यू दोनों टेबल में कॉमन है, उस वैल्यू को तुम पहली टेबल पे सिलेक्ट करते हो. ओके,
तो जैसे मैंने तुमको यहाँ पर बताया, ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे जब मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो ये मेरी पहली टेबल है, ये मेरी सेकंड टेबल है, हमको यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करके यहाँ लानी है, तो ये मेरी फर्स्ट टेबल हो गई। तो लुकअप वैल्यू दैट वैल्यू विच इज मैच इन बोथ। ओके, सो ये और ये एम्प्लॉय आईडी मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पहला ये जो है, सपोज ये हमारा A1 है, तो हम A1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने A1 वो वैल्यू हमने सेलेक्ट कर दी। नाउ द सेकंड थिंग इज अ टेबल अरे। टेबल अरे basically the table or the range of the cell where the data is stored. This should include the column where the lookup value is found and column from the which to retrieve the value. Table array means the second table where you from where you want to extract that value. Okay, we want to extract the department, so we will select the whole table from employee id, whatever the how many column is there in the table, we can select all the table. Okay, that is called the table array. Okay, the third thing, we will write column index number. What is the column index number? So column index number is basically the table array from which, in table array, आप इस टेबल अरे में जो टेबल है, जो सेकेंड टेबल है, जहाँ से हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर क्या है, वो कॉलम कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। सपोज वो कॉलम हमारा पहले नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे 2 3 4 लाइक दैट। यहाँ पर डिपार्टमेंट सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि हम डिपार्टमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। नाउ range lookup that false and true, these are the optional, but we have to choose one. False means is basically you want the exact match. If you want the exact match in both table, so you can select false, you can write false. If you want approximate match, you can select true. So that is the difference between false and true. You have to select one thing here. Okay, so now this is done. Okay, you understood the formula basically. Now I will tell you one example here. Okay, before example, I want to tell one thing, like in VLOOKUP, suppose मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक्सेल में वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है। वर्कशीट वर्कबुक के अंदर होती है, ठीक है ना। मीन्स वर्कबुक कंटेन्स द मल्टीपल वर्कशीट। ओके, सो अगर टेबल्स सेम सीट में है, सपोज ये सीट है, पहला ये है, सेकेंड ये है, दोनों टेबल एक ही सीट पे है, तो हम VLOOKUP कैसे यूज करेंगे। दोनों टेबल डिफरेंट सीट्स पे है, तो हम VLOOKUP कैसे यूज करेंगे। एंड दोनों टेबल्स डिफरेंट वर्कबुक में है, तो हम VLOOKUP कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और ये हमको याद रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ हमने एक बार हमने एक वर्कशीट में हमने VLOOKUP यूज कर लिया, बस यहीं तक हो सकता है VLOOKUP का यूज। नहीं, वो दो टेबल्स अलग अलग वर्कबुक में हो सकती हैं, अलग अलग वर्कशीट में भी हो सकती हैं, सेम वर्कशीट में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब सपोज जब तुमने VLOOKUP यूज कर लिया, ठीक है ना, आप लोगों ने VLOOKUP यूज कर लिया, तो कभी कभी होता है ना कि वैल्यू मैच नहीं कर पाती है, तो कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो वो कॉमन एरर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि उससे आप लोग थोड़ा सा मतलब पहले से पता रहे कि ओके दिस ये एरर आया है, तो मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो पहला मे बी कुछ प्रॉब्लम हो फंक्शन में या वैल्यूज में, तो पहला एरर आ सकता है सेल में REF। इसका मतलब होता है कि कॉलम नंबर इज ग्रेटर देन अवेलेबल कॉलम्स। सो वो जो कॉलम इंडेक्स नंबर था ना, थर्ड पोजीशन पे उस VLOOKUP फार्मूला में, तो सपोज सेकंड टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, बट तुमने कॉलम इंडेक्स नंबर 4 लिख दिया, तो इस टाइप का एरर आ सकता है। जब कॉलम नंबर ग्रेटर देन हो, जो वो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो तुमने लिख दिया, ठीक है ना, तो ये इस टाइप का एरर आता है। सेकंड, वैल्यू टाइप का एरर आ सकता है। वैल्यू टाइप का एरर मीन्स जब कॉलम नंबर लेस देन 1 हो। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे कम तो हो नहीं सकता है ना कुछ। अगर तुमने 0 लिख दिया, तो इसका मतलब इस टाइप का एरर आएगा कि वो कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाया है, ठीक है। थर्ड नंबर, इस टाइप का एरर आ सकता है, NA। ये क्या होता है, NA क्यों आता है, जब लुकअप वैल्यू फाउंड नहीं कर पाता है, ठीक है, जब लुकअप वैल्यू फाउंड नहीं कर पाता है, एग्जैक्ट मैच नहीं फाउंड कर पाएगा। सपोज जब हमने आपको बताया पहली बार कि एक टेबल है हमारे पास जिसमें एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 एंड द एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। एंड सेकंड टेबल है, सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है 2 3 4 एंड डिपार्टमेंट नेम है, तो यहाँ पर 1 ने वैल्यू फाउंड नहीं कर पाई, 1 वाले लुकअप वैल्यू ने वैल्यू फाउंड नहीं कर पाई अपने लिए, तो यहाँ पर वो NA आ जाए, क्योंकि उसको वैल्यू मिली ही नहीं, ठीक है ना, वैल्यू है ही नहीं सेकंड टेबल में उससे मैच मिलते होते, तो यहाँ पर NA आ जाएगा एरर, ठीक है। तो दिस टाइप के एरर आ सकते हैं जब हम एक्सेल फॉर्मूला यूज करेंगे कभी कभी, तो घबराना नहीं है। ये पता करना है कि NA क्यों आया है, क्योंकि मे बी उसको वैल्यू वो नहीं मिल पाई है। वैल्यू एरर क्यों आया है, मे बी हमने कॉलम नंबर लेस देन 1 लिख दिया है, ठीक है ना, ऐसे। अब मैं कुछ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है VLOOKUP के अलावा यहाँ पर HLOOKUP है, XLOOKUP है, इंडेक्स मैच है, तो ये जब VLOOKUP के अलावा और भी लुकअप्स है, वो तभी बने होंगे ना जब VLOOKUP में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कुछ कमी होगी, तभी वो बने होंगे। तो वो क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से और भी लुकअप बनाए गए। सो ड्रॉबैक्स ये है कि ये हमेशा वैल्यू को लेफ्ट से राइट की ओर सर्च करता है, लेफ्ट से
राइट की ओर सर्च करता है, वो कभी वैल्यू इधर से इधर की ओर सर्च नहीं करेगा। सपोज यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी है, और ये हमारे पास सैलरी या एम्प्लॉय नेम बोल दो, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय आईडी है और ये हमारे पास डिपार्टमेंट है, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट सर्च करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट सर्च करके हम इस टेबल में लाना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो ये है, तो वो लेफ्ट से राइट की ओर सर्च कर रहा है, तो वो कर जाएगा वर्क। बट सपोज अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ नहीं होती, वो एम्प्लॉय आईडी इस साइड होती, ठीक है ना, तब हमको डिपार्टमेंट हमको इधर चाहिए होता, तो ये वी लुकअप वर्क नहीं करता, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की ओर सर्च नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक ड्रॉबैक्स है, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर, हमेशा तुम्हें लुकअप वैल्यू जो कॉलम चाहिए उसके लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए वो लुकअप वैल्यू का कॉलम, ठीक है। देन अगर मान लो तुमने डिपार्टमेंट, तुमने जब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और तुमने क्या किया, डिपार्टमेंट को इसमें ले लिया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट इस कॉलम में एक्सट्रैक्ट हो गया वीलुकअप का यूज करके। तो सेकंड ड्रॉबैक्स ये है, अगर तुम यहाँ पर कोई और कॉलम इंसर्ट कर दोगे, सपोज डिपार्टमेंट सेकंड नंबर पे है, सेकंड रो पे, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर तुमने यहाँ पर सेकंड, अगर तुमने सेकंड कॉलम इंसर्ट करने का ट्राई किया, अगर यहाँ पर इंसर्ट हो गया सेकंड कॉलम, तो क्या होगा कि यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंसर्ट किया तो ये डिपार्टमेंट थर्ड पे आ गया, ठीक है, डिपार्टमेंट थर्ड नंबर पे आ गया, तो सेकंड नंबर पे कोई और अदर कॉलम आ गया, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा के तुमने डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया है, तो वो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है, चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज हुआ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। बात आती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब यही चीज कि अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट थर्ड नंबर पे जा रहा है, तो वो भी थर्ड हो जाए, बट वो ऐसा नहीं है, ये स्टैटिक है। एक बार तुमने जो कर दिया वो वही रहेगा। अगर तुमने तुमने अगर लिखा है कि A2, तो वो A2 ही रहेगा, A3 नहीं बन सकता है, समझे ना। तो ये होता है, ये ड्रॉबैक है। और सम टाइम जब बहुत ह्यूज डाटा सेट होता है तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस पे, ठीक है ना। तो हम क्या हम एक एग्जांपल दें वीलुकअप का? तो चलो एक एग्जांपल दे लेते हैं वीलुकअप का, सो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। सो ओके, तो चलो पहले हम वीलुकअप का एग्जांपल देते हैं सेम सेम सीट पे, ठीक है ना, सेम सीट पे देते हैं। तो मान लो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है ना। तो हम लेके चलते हैं, ठीक है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं ये पे कॉलम जो है वो यहाँ पर आ जाए, जिस एम्प्लॉय आईडी का जो पे है वो हमको एग्जैक्ट हमको मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट है 11 समथिंग और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट है 99 समथिंग। तो वी कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट हियर की जॉन की सैलरी ये हो गई, नहीं, जॉन की सैलरी कुछ और है। सपोज ये है यहाँ पर 11, सो जॉन की सैलरी ये है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। हमको सर्च करना है कि ये एम्प्लॉय आईडी है, तो इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी क्या हो सकती है, वो यहाँ पर सर्च करेगा, ओके इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी है, तो ये सैलरी यहाँ पर आनी चाहिए इस जगह। तो हम कॉपी करके मैनुअली तो नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वीलुकअप। तो हमको क्या चाहिए, पे चाहिए सैलरी का एक ही जगह पर, ठीक है ना। तो हमको पे जब चाहिए तो हम करते हैं वीलुकअप का यूज, ओके। सो इज इक्वल टू वी लुकअप। तो जैसे ही तुमने वी लिखा ना, एक फंक्शन आएगा उस पर, जब उसको बस लिखना है, सो वी लुकअप। जब वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट लगाया, तो हमने जो जो चीजें बताई थी वो यहाँ पर हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, ओके, सारी चीजें हैं। तो पहले हम देखते हैं लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू हमने क्या बताई थी कि जो वैल्यू कॉमन है, तो फर्स्ट टेबल ये है हमारी, तो ये वैल्यू कॉमन है दोनों में, एम्प्लॉय आईडी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट कर दिया एंड कॉमा लगाया। अब हमने जब कॉमा लगाया, अब पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे मीन्स जो सेकेंड टेबल है वो, तो हमने टेबल अरे को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इधर से उधर नहीं करना है सारी चीजें, तो हम इसको देन जब भी टेबल अरे लो ना, तो एक काम करो, हमेशा हमेशा जब भी टेबल अरे लो तो हमेशा एक काम करो कि डॉलर साइन जरूर यूज कर दो, ठीक है ना। तो एक मिनट, मैं बताती हूँ डॉलर साइन एक पॉइंट में कैसे अप्लाई हो जाता है। तो ऑलवेज व्हेन यू सिलेक्ट द टेबल अरे ना, ऑलवेज पुट डॉलर, okay, always put dollar. So I don't know why the short form is not working, it should be work, but no worry, um, next time I will. So now you can see all pays extracted here, सारा पे इस एम्प्लॉय का पे आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया हमारा सेम सीट पे, ठीक है, कि सेम सीट। अब डिफरेंट डिफरेंट सीट्स पे देखते हैं। सो चलो वो एग्जांपल भी बता देते हैं कि हमेशा लेफ्ट साइड वर्क करता है, राइट साइड वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो सपोज ये मैंने लिया और ये मैंने
यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं पे के लिए ये कॉलम दूंगी, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच। सो वी लुक अप, आई विल डू फास्टली, ओके। सो वी लुक अप, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट एंड देन द वैल्यू, देन कॉमा एंड देन टेबल एरे, ठीक है ना। सो टेबल एरे मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके। सो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है, एरे लिख लिया, कॉमा। अब मैं कॉलम इंडेक्स कौन सा दूंगी, ये 1 है और ये 2 है, तो मैंने 1 दूंगी, ठीक है ना। मैं राइट से लेफ्ट वाला करके दिखा रही हूँ, उसमें क्या होता है मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ। तो मैंने 1 लिखा, कॉमा, मैंने लिख दिया फॉल्स। देखो इसने वैल्यू नहीं फाउंड किया, ठीक है ना। ये लेफ्ट से राइट नहीं वर्क कर रहा है, सॉरी ये राइट से लेफ्ट नहीं वर्क कर रहा है, हमेशा लेफ्ट से राइट फाउंड करता है, कभी भी राइट से लेफ्ट फाउंड नहीं करता है। दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन दैट एक्सेल, okay, in that VLOOKUP, okay. So that is the thing I want to tell you. Okay, now I want to show that one thing also. When you insert one column now, so this value will automatically change. See, it's changed. Okay, it's changed. When you did, it's automatically changed. So this is not dynamic. Okay, this is not dynamic. So ये तो हो गया हमारा सेम सीट,